اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Zair Khurshid Mohammed, lecturer in English from Oxford Education Academy. And today I am going to deliver you a lecture on English KPK book for grade 10. Today's topic is the champion. This is the topic. This is from unit number 2 for grade 10. Tikshu. The lesson Jumat, the unit number 2, the English kitab na, awalane topic, dem number unit ki topic ne the champions. The reading level auru, level tafs likali di, pre-reading. The pre-reading se matlab hai. Pre-reading matlab da hai che the reading ne maki. The kitab dolastal ne maki. A tamhidi question che yaad hai. Da tamhidi question ne maki ne. Pre ka maana hai pehle, reading ka maana hai padhai, padhai se pehle. The reading da musara jiran de. Da the novel maana warkai. The ing chikam raha hai rahi hai wala چکم ٹینس شو گئی دا آغنا دی دا دی جیرنٹ دی تو جیرنٹ دی تو جیرنٹ دا جیرنٹ سے شیدی جیرنٹ خانا آغا دا آئی انجی آغا فام چا آغا بوتا دا ناون مانا راکی پا فکر رکی ناگی تبویلی شید جیرنٹ او دا بوتا ٹینس نشو گئی بلا دا دی نخد آغا چې د جیرن نمخ کې با د موږ سره هیلپنګ ورب موجود دی. هیلپنګ ورب پیژنئ که نه کنی نو تاسو ته لیکچرو کې مخکې درغلي دي انشاءالله که خیر سره بیا به هم درځي. لک ایٹ دا پکچر, تصویر کی طرف دیکھو اینڈ گیس اور اندازہ لگاؤ. گیس اندازہ لگاؤ, سوچ لو. گیس گیس کا معنی ہے اندازہ لگانا اور اندازہ لگاؤ. پہلے سے بات بتاؤ, پریڈکٹ کر لو what the story is about. story کس چیز کے متعلق ہے. اب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں, یہ بھی جرن ہے. پڑھائی کی طرف آتے ہیں, یہ پڑھائی ہے. احمد علی اینڈ گلشیر ور کلاس میٹس. احمد علی اور گلشیر دونوں ہم جماعت تھے. اسٹڈنگ ان گریڈ 10 ان اے گورنمنٹ اسکول. اور ایک گورنمنٹ اسکول, ایک سرکاری اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتے ہوئے دلتے کہ اسٹڈنگ رکھ لیں. اسٹڈنگ پڑھتے ہوئے ددی اگر پڑھ رہا ہے مانا مونږ نه شو کولای دا کدا جران دی ددی نمبر کی هیلپنګ ورب نشته دی. ٹھیک ده. اسٹڈنگ ان گریڈ 10 ان اے گورنمنٹ اسکول, ایک سرکاری اسکول کی 10ویں جماعت میں پڑھتے ہوئے سچویٹڈ ان دی امپاورشڈ نیبرہوڈ آف لیاری کراچی. نو دا اسکول نه بعد تاسو وګورئ اسکول لیکل دی دغه بعد کامه شوی دا. نو د دې مطلب دا دی بیا په شروع سره د اسکول وضاحت کړي چې سچویټډ. ٹھیک ده. نو دا څه غلط کړی دی دلته کې پکار دا چې دلته کې ډیش کړی وي چې د دې خبرې ترې موږ ته وضاحت شوی وي. د دې د وضاحت لپاره د دې اسکول د وضاحت لپاره بیا موږ له ډیش پکار دی. د ډیش مطلب دا دی چې دا کومه خبره مخکې وشوله نو د دې اوسو دا د دې وضاحت دی, د دې ایکسپلینیشن دی. نو دلته کې دا کامه په ځای باندې تاسو ډیش ولګوئ دا به ډېر ښکلی وي. ٹھیک شو. سچویٹڈ جو واقع ہے, سچویٹڈ جو واقع ہے موجود ہے ان دا امپاورشڈ نیبرہوڈ آف لیاری کراچی. کراچی کے لیاری نامے ایک غریب پڑوس میں واقع گو سرکاری اسکول کے 10ویں جماعت میں پڑھتے ہوئے احمد علی اور گلشیر دونوں ہم جماعت تھے. They were so together in friendship, وہ friendship میں اتنے گل ملتے, ایک دوسرے کی اتنے قریب تھے that they felt themselves to be brother, کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو بھائی محسوس کرنے لگے. They had known each other since childhood, وہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. امپاورشڈ مانا غریب, نیبرہوڈ کا مانا ہے پڑوس, felt یہ فیل کا سیکنڈ فارم ہے. فیلٹ یہ irregular verb ہے, محسوس کیا. چائلڈہڈ بچپن ہی سے, وہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. گروئنگ اپ
on the lower eastern side of Liari River. जो लियारी रिवर के निचले मशरक की जानब निचले सतह पर वो पले बड़े थे. गुलशेर was fair, lean and lanky. गुलशेर fair गोरा था, pretty खूबसूरत था. lean दुबला था यानी दराज था, and lanky और पतला हल्के सा वजूद रखने वाला था, हल्के से बॉडी रखने था. तो गुलशेर गोरा और दुबला पतला था. His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth. आपके खानदान वाले मुंतकिल हुए थे फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू कराची. खैबर पख्तूनख्वा से कराची मुंतकिल हुए थे. कब? तो अभी बिफोर हिज बर्थ. तो बिफोर हिज बर्थ ये हमें एडवर्ब फ्रेज बताता है कि आपके खानदान वाले आपकी पैदाइश से पहले खैबर पख्तूनख्वा से कराची मुंतकिल हुए थे. अहमद अली वाज शीदी, डार्क, शॉर्ट एंड हस्की. अहमद अली शीदी था, खानदान के लिहाज से वो शीदी था. वो ये अहमद अली शीदी था. और गुलशेर क्या था? गुलशेर पुख्तून था. डार्क सियाह रंग का था, शॉर्ट तिगना था, शॉर्ट तिगना, छोटे कद वाले को तिगना कहते हैं. हस्की और मजबूत जिस्म वाले थे. हस्की मजबूत जिस्म, ये शॉर्ट तिगना, ठीक है, ये तिगना है. और हस्की का माना है मजबूत. हस्की मजबूत जिस्म रखने वाले. वेल बिल्ट. अच्छा, गुलशेर्स हेयर वाज ऑलवेज फॉलिंग ओवर हिज आईज. गुलशेर की बाल हमेशा उसके आंखों पर लटक रहे थे. While Ahmad Ali wore his black hair in a natural Afro style, जबकि अहमद अली अपने अफ्रीकन तर्ज के कुदरती सियाह बाल रखे हुए थे. वोर मीन्स वो पहने हुए थे, मीन्स रखे उसके मौजूद थे, उसके रखे हुए थे. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing championship of the world. Each youngster, और हर जवान, had a dream of someday becoming, किसी दिन बनने का एक ख्वाब था, एक तमन्ना रखते थे, ख्वाहिश रखते थे. A lightweight boxing championship of the world, दुनिया के lightweight boxing champion. और हर जवान, उनमें से अहमद अली और गुलशेर दोनों, हर जवान किसी न किसी दिन दुनिया की लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनने की एक ख्वाहिश रखते थे. ड्रीम, ख्वाहिश रखते थे, तमन्ना रखते थे. टू अचीव दिस चेरिश ड्रीम, इस दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए, अचीव हासिल करना, ड्रीम एक ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश को, इस दिल्ली चेरिश ड्रीम, दिल्ली तमन्ना, इस दिल्ली तमन्ना को हासिल करने की गर्ज से दे वुड स्ट्राइव हार्ड डे एंड नाइट. वो दिन रात सख्त कोशिश कर रहे थे. स्ट्राइव जिद्दोजहद करना, कोशिश करना. इधर स्ट्राइव इधर लिखा है, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना. जद्दोजहद नहीं है, ये जिद्दोजहद है. जिद्दोजहद करना, सख्त कोशिश करना. अक्सर लोग इस तरह है कि ये बड़े बड़े मुकर्रिरीन होते हैं और जब ये कहते हैं तो ये पठान वाले अक्सर उनकी उर्दू इस तरह प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, तो वो कहते हैं हमने बहुत जद्दोजहद की. जद्दोजहद नहीं है, ये जिद्दोजहद है. ठीक है, जिद्दोजहद, तो कोशिश, सख्त मेहनत करना, सख्त कोशिश करना. तो दिन रात, तो वो दिन, उन्होंने दिन रात सख्त मेहनत की या मेहनत करते थे. Early morning sunrise would find them running along the river Liari. और तुम सुबह सवेरे उसको सूरज के निकलने के वक्त
दरियाई लियारी के किनारे आप उसको दौड़ते हुए पा सकते हैं, पाएंगे। एंड would attend the boxing club daily without any break, और किसी भी नागा के बगैर, किसी भी ब्रेक के बगैर वो बॉक्सिंग क्लब को हाजिरी देते थे। They had a collection of pictures of famous boxers like Joe Louis, Evander Holyfield, Rocky Marciano, Joe Frazier, Muhammad Ali and Mike Tyson, cut out from all newspaper and magazine। और उन्होंने मशहूर बॉक्सर्स की तस्वीर जैसे जो लुइस, इवांडर होलीफील्ड, रॉकी मार्सियानो, जो फ्राइजर, मोहम्मद अली एंड माइक टायसन पुराने अखबारात और रिसालों से काटे हुए उनके तस्वीर उनके पास मौजूद थे। उनका जमघट, उनका कलेक्शन उनके पास ये मौजूद थे, उनके तस्वीर मौजूद है। इफ आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एनी गिवन फाइटर, अगर किसी भी दी गई फाइटर, दी गई मुकाबला करने वाले, दी गई बॉक्सर्स के बारे में कोई सवाल पूछा जाता, they would immediately zip out from their memory, तो वो फौरन अपने याददाश्त, अपने जो जितनी मेमोरी थी उसके पास, जिनके उनके अपने इल्म के मुताबिक जितना इल्म था, तो उसे फौरन वो खोल देते, उसका जिप खोल देते, यानी फौरन शुरू हो जाते उसके बारे में कहना कि वो उसके रैंक क्या है, रैंक डिवीजन क्या है, वेट्स, उनके वजन क्या है, रिकॉर्ड ऑफ फाइट्स, कितने मुकाबले किए थे, नॉकआउट कितने नॉकआउट है, टेक्निकल नॉकआउट, टेक्निकली नॉकआउट किए थे, एंड ड्रॉज और कितने मैच बराबर किए थे, एंड लॉसेस और कितने हार चुके थे। तो सारे के सारे वो बयान कर लेते, क्योंकि उनके पास ये मौजूद था, वो उनके शौकीन थे कि मैं भी बॉक्सर बन जाऊं, तो इसलिए वो चैंपियंस बॉक्सर जो है वो उसके तस्वीर उनके पास मौजूद थे, और उन हर एक के बारे में जितने उसकी सवाल उम्र थे और कितने मालूमात थे तो उनको वो रखते थे। ईच हैड फॉट मेनी फाइट्स, और उनमें से हर एक ने बहुत से मुकाबले किए थे। मेनी फाइट, बहुत जंग लड़े थे, मुराद है यहाँ मुराद है कि बहुत से मुकाबले किए थे। एंड हैड वन मेनी बैटल, बहुत से तमगे जीते थे, मेडल्स, तमगे। फाइट ये लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड फॉर्म है और इरेगुलर फॉर्म है। दे वर इक्वली गुड बॉक्सर, वो बराबर के अच्छे बॉक्सर्स थे। द डिफरेंस वाज इन देयर बॉक्सिंग स्टाइल्स, फर्क सिर्फ उसकी बॉक्सिंग स्टाइल का था कि वो किस तरीके से बॉक्सिंग कर रहे थे, तर्ज जो तरीका था, स्टाइल मींस तरीका। कुर्जलीन फॉर्म, गुल के जो दुबला, गुल का जो दुबला जिस्म था, जिस्म था, साख्त था, फॉर्म साख्त, एंड लॉन्ग रीच, उनके दूर तक रसाई, उनके बाजू की दूर तक रसाई, मेड हिम द बेटर बॉक्सर, ने उसको बेहतर बॉक्सर बनाया था। उनकी दुबले कद और दूर तक रसाई करने वाले ने, उसके कद ने उसको अच्छा बेहतर बॉक्सर बनाया। while Ali's short and muscular frame made him the better slugger, जबकि अली के तिगना कद और उसके मजबूत जिस्म ने उसको झुक कर मुक्का मारने वाला बनाया था कि वो बेहतरीन स्लगर था। स्लिगर भी बॉक्सिंग में इस्तेमाल होता है, जब एक इंसान इस तरह वार करता है, दूसरा ही सर झुका के नीचे से वार करता है, अपने आप की बचाव करता है, तो इसको कहते हैं स्लगर। Whenever they had met in the ring for friendly fight, और जब कभी वो दोस्ताना मैच के लिए रिंग में, उखाड़े में मिल जाते, आपस में आमना सामना करते, it had always been hot and heavy contest, ये हमेशा पुरजोश, हॉट गर्म को कहते हैं, इधर मुराद है पुरजोश, ये हमारा हमेशा पुरजोश एंड हेवी भारी को कहते हैं, लेकिन इधर मुराद है मजबूत, बेहतरीन, अच्छा मजबूत और बेहतरीन कंटेस्ट मुकाबला होता है। इधर कंटेस्ट स्ट्रगल को कहते हैं, इधर मुराद है मुकाबला। वंस दे वर फाइटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पोल्स, ये वंस लिखा है, इधर ये है ONES, तो ये गलत है, इसकी जगह वंस लिखो, वंस एक दफा, और ये वंस जो है ना ये प्रोनाउन है, और ये
एडवर्ब है, अबहिसियती, सब्जेक्ट काम करता है, तो वंस ONCE लिखो, ठीक है। वंस दे वर फाइटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पोल्स, एक दफा वो दो मुख्तलिफ पोल से मुकाबला कर रहे थे फॉर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए मुख्तलिफ पोल से वो लड़ रहे थे। एंड द विनर ऑफ द फाइनल was to represent the country in World Lightweight Boxing Championship, और इसका जीतने वाला इसी मुकाबले का जो फाइनल है, फाइनल जीतने वाला अपने मुल्क को दुनिया की लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पेश करेगा, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेगा, रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। तो इसका फाइनल जीतने वाला दुनिया की लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एलिमिनेशन फाइट्स, कुछ फैसलाकुन मुकाबलों के बाद, दे हैड बीन इन्फॉर्म, एलिमिनेशन, तो इधर लिखा है एलिमिनेशन, फैसलाकुन मुकाबलों के बाद, दे हैड बीन इन्फॉर्म, उनको इतला दी गई, उनको बताया गया, दैट दे वर टू मीट ईच अदर इन द फाइनल, के आखिर में, फाइनल में, आखिरी मैच में ये वो एक दूसरे का सामना करेगा। दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द 14th of August, 2 weeks अवे, जो कि 2 हफ्ते बाद 14 अगस्त को पेरिस में मुनक़िद किया गया है। The two boys continued to run together, दोनों लड़के इकट्ठे दौड़ना शुरू कर दिया। But even when joking with each other, लेकिन अपने एक दूसरे से मजाक करते हुए भी, they both had sensed, उन दोनों को एहसास था, उन दोनों को ये एहसास था, that a wall was rising between them, कि उनके दरमियान एक दीवार खड़ा होने वाला है, यानी उनके दरमियान जुदाई आने वाली है। One morning, less than a week before their bout, अपने bout बॉक्सिंग मुकाबले को कहते हैं, मुकाबला, लेकिन बॉक्सिंग का मुकाबला, अपने बॉक्सिंग के मुकाबले से एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते से कम वक्त पहले, दे मीट एज यूजुअल फॉर देयर डेली वर्कआउट, तो वो मामूल के मुताबिक एक दूसरे से मिले, उन्होंने एक दूसरे के साथ मामूल के मुताबिक मुलाकात की। इंशाल्लाह यहां तक काफी है। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इससे आगे जाएंगे, यहां तक याद रखिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।